ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر سے خوارجوں کی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ 33 خوارج مارے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کو بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے گروپ کی نقل و حرکت پکڑی گئی۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ خوارج پاک افغان بارڈر سے ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے در اندازی کی کوشش پر 33 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق مارے جانے والے خوارج سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ علاقے سے خوارج کے مکمل صفائی کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہیں۔ ملک سے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ ادھر باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ ریاست کے خوارج سے بات چیت یا سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زمینی حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ان خارجیوں کو جن کی زیادہ تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے ان کو باہر نکالیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر قبائل خوارجین کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ سیکیورٹی فورسز ان خوارجین کو ان کے انجام تک پہنچا سکیں۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو حت المکان حد تک نقصان سے بچا جائے، کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی۔ اپڈیٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں بڑا دھچکا۔ 3 اہم عہدے پارٹی سے واپس لے لیے گئے۔ قومی اسمبلی میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ ہو گئے۔ زرتاج گل کا پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹا کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی ہو گیا ہے۔ PTI سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ PTI کو اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔ عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ PTI کے 7 اراکین اسمبلی سے 15 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرمین ختم کر دی گئی ہے۔ زرتاج گل قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکنیت سے محروم ہو گئی ہے۔ رائے حسن نواز کی قائمہ کمیٹی ریلوے کی چیئرمین بھی ختم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے برآمدات کے گزشتہ برس کے ہدف $3.8 ارب کے حصول کی پذیرائی اور $30 ارب کے ہدف کو عبور کرنے کے لیے آئندہ برسوں کے سالانہ اہداف اور درکار اقدامات پر جامع لائحہ عمل پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ NITP اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اقدامات سے متعلق اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی ڈیجیٹلائزیشن سے معیشت کی ترقی اور اسے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IT برآمدات کو $30 ارب تک پہنچانے کے لیے پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم اور اس کا انفراسٹرکچر متعارف کروایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوش آئند ہے کہ نوجوان بالخصوص خواتین کو IT کے شعبے میں روزگار کے حوالے سے خود انحصار بنانے کے لیے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں آسٹریلین ہائی کمشنر کی الوداعی ملاقات۔ مریم نواز نے پاکستان میں شاندار خدمات کے اختتام پر ہائی کمشنر نیل ہاکنس کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، معدنیات اور IT خدمات میں تجارت کو وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا پاکستان اور آسٹریلیا کے باہمی روابط اور 2 طرفہ تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ SIFC کے تحت سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی منتقلی اور دیر پا شراکت داری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایکو کلچر، فشنریز کی امپورٹ کے لیے، کولڈ چین لاجسٹکس کے فروغ کے لیے پر امید ہیں۔ حکومت پنجاب سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکنہ معاونت کرے گی۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا آسٹریلیا اور پاکستان بااعتماد دوست اور اہم اقتصادی شراکت دار ہیں۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज, दो तरफा ताल्लुकात बदतरीन मोड़ पर आ गए हैं। अमरीकी सदर ने नई दिल्ली से तिजारती मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। सदर ट्रंप का कहना है जब तक टैरिफ का मसला हल नहीं होता भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। भारत और अमरीका के दिफाई मुआहदे भी खतरे में पड़ गए हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमरीका मनसूख हो गया है। दौरे के दौरान जासूस तैयारों समेत अहम दिफाई साजो सामान की खरीदारी का मुआहदा मुतवक्के था। फरवरी में सदर ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात तय पाने वाले मुआहदों के तहत भारत अमेरिका से 3.6 अरब डॉलर के जासूस तैयारे खरीदने वाला था। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर चुका है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा है कि इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात खित्ते को कशीदगी की तरफ ले जाएंगे, मुनसिफाना दो रियासती हल की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के सदर ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईरानी सदर से मुलाकात के दौरान ईरान पर इसराइली जहरीत की मजम्मत की। ईरानी सदर ने इसराइली जहरीत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। ईरान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा तिजारती हुजम बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने बताया कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी मसले के मुनसिफ़ाना और दो रियासती हल पर जोर दिया। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने के लिए याद दहानी नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें माली साल 2024-25 के गोशवारे 29 अगस्त तक जमा करवाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उमैर से। जी उमैर, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 की दफ़ा 204 और 210 और इलेक्शन रूल 2017 के कायदा 159 और 160 के तहत याद दिलाया है कि इन्हें जून 2025 में ख़त्म होने वाले माली साल 2024-25 के लिए अकाउंट्स के मरबूत गोशवारे इलेक्शन कमीशन में 29 अगस्त 2025 तक या इससे पहले जो है वो जमा करवाने होंगे। खबर देंगे, पाकिस्तान ने गजा के लिए 18वीं इमदादी खेप रवाना कर दी है। 100 टन इमदादी सामान में खुश्क राशन, तैयार खाना और अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर अब तक 1815 टन इमदादी सामान गजा पहुँचाया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इमदादी सामान की रवानगी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा के शहरी ग़िज़ाई किल्लत से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब तक 18 इमदादी परवाज़ें गजा रवाना की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। अता तारर ने अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी की काविशों को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी भाइयों की अमली इमदाद की है। मेडिकल के शोबे में फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान में ज़ेर तालीम है और हम आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीनी अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के दुख और मुश्किलात का गहरा एहसास है। सिंध असम्बली में अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे का बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया है। सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंचार ने अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे का बिल पेश किया, जिसको तमाम अरकान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। मेम्बरान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे के बिल की ऐवान में मरहला वार मंजूरी दी गई। तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश करने पर तमाम अरकान के डेस्क बजा कर बिल की हिमायत की। ज़ियाउल हसन लंचार ने कहा कि सिंध असम्बली के तमाम मेम्बरान ने इस बिल की हिमायत की और कहीं से भी मुखालिफत सामने नहीं आई। निसार खोड़ो ने मज़कूरा बिल में पब्लिक कमेटी का जिक्र न होने पर एतराज़ करते हुए कहा कि कमेटी का मतलब कमेटी होता है, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों ना हो। मंजूरी के बाद नई तनख्वाहों और मराहत पर 1 जुलाई 2025 से अमल दरामद होगा। पाकिस्तान में अक्टूबर में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़रिए सदारत मुजवज़ा कॉन्फ्रेंस के बारे में अहम फैसले होंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 23 और 24 अक्टूबर को होगी। 27 ममालिक शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में भूटान, चीन, ईरान, काज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान को भी शिरकत की दावत दी गई है। अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, बहरीन, बांग्लादेश और बेलारूस कॉन्फ्रेंस में मदऊ होंगे। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि खित्ते में इलाकाई ताउन और बाहिमी राब्तों को फ़रोग़ मिलेगा। आला सतही इजलास में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम, मुख्तलिफ सेशंस और दीगर उमूर पर गौर किया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में सकाफती इवेंट और दीगर उमूर की तजावीज़ भी शामिल हैं। मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में 27 ममालिक के वज़रा के साथ साथ सफ़ीर भी मदऊ होंगे।
सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन को फौरी रिलीफ न मिल सका। जायदादों की नीलामी पर हुक्म इम्तना देने की बहरिया टाउन की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि एक तरफा स्टे नहीं दे सकता, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफर्रिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ारत से इस्तीफ़ा दिए जाने के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि खबर देने वाले ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात बयान की हैं, मैंने वज़ारत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि अगर बकवास करने का कोई प्राइम टाइम स्लॉट होता तो यूथियाज उसकी शहर सुर्खी होते। सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई थी कि सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी के मामले पर वज़ीर दिफा ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 21 से 23 नवंबर को लाहौर में इज्तिमाए आम का ऐलान कर दिया है। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने ऐलान करते हुए कहा कि 21, 22 और 23 को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा और इस मौके पर बड़ी तहरीक का आगाज़ होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा कि इज्तिमाए आम में दुनिया भर से इस्लामी तहरीकों के कायदीन को शिरकत की दावत देंगे। हाफिज रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने तवील जद्दोजहद करके बड़ी टीम तैयार की है। अब जमात मुल्क के लिए एक बेहतरीन अच्छी ऑप्शन बनकर सामने आएगी ताकि गले सड़े निज़ाम से जान छुड़वाई जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान इस मुल्क से मायूस हैं क्योंकि नौकरियां नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क में गरीब के लिए तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं और हम तालीमी तौर पर तबकाती निज़ाम में तकसीम हो चुके हैं। अगर नौजवान ने तालीम भी हासिल कर ली तो उन्हें रोज़गार ही नहीं मिलता। हुंजा में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने के बाद दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई है। नदी नालों और दरियाओं में शदीद तुग़यानी है। मोरखून और गर्जा के मकामात पर शराय कराकरम को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क बंद होने से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। शराय कराकरम पर हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई है और मकामी अफराद को भी मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई है। महकमा मौसमियात और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि अगर ग्लेशियर्स का पिघलाव इसी रफ्तार से जारी रहा तो अगले चंद दिनों में मज़ीद सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई थी जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के नवाही इलाके मनावा में मार गिराया। पुलिस ज़राए का बताना है कि फोर्सेस ने फौरी तौर पर ड्रोन को निशाना बनाकर नीचे गिराया। इब्तदाई तौर पर ड्रोन सर्वेलेंस लगता है और इसमें कोई बारूद नहीं था। पुलिस ज़राए के मुताबिक हसास इदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पाक अफवाज का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को 67वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने साबिक मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन के खिलाफ जर्रत और बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम करते हुए जाम शहादत नोश किया। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। उनके अजीम कारनामे पर कौम ने उन्हें निशान हैदर जैसे आला तरीन एजाज़ से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मेजर तुफैल शहीद और तमाम शौदा की कुर्बानियाँ कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। उनकी जुर्रत, ईसार और वतन से मोहब्बत आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। वतन की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए जानों का नजराना देने वाले ये अजीम सपूत हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। यौम आज़ादी करीब आते ही जश्न आज़ादी के जोश व खरोश में इजाफा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज़ ने तमाम महकमों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि जश्न आज़ादी की तकरीबात के दौरान आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। फैमिलीज़ की आमद के पेश नज़र अवामी मकामात पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब भर में ज़िला इंतज़ामिया को जश्न आज़ादी की तकारीब, रैलियों समेत दीगर तकारीब में शहरी तंजीमों की भरपूर मुआवनत की भी हिदायत कर दी। पंजाब भर के शहरों और देहात में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। शहरों और देहात में आवाम का घरों पर परचम लहराने का सिलसिला जारी है। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रालों और ट्रक्स को भी खूबसूरती से सजा दिया गया है। कौमी यादगारों पर भी चिरागा किया गया है। इस्राइली सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गज़ा पर अस्करी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। ये ऐलान वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हालिया बयान के चंद घंटे बाद किया गया।
नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल पूरे गजा पर फौजी कंट्रोल चाहता है ताकि हमास को ख़त्म किया जा सके। उनके दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली फ़ौज गजा शहर पर कंट्रोल हासिल करने की तैयारी करेगी, जबकि जंगी इलाकों से बाहर मौजूद शहरियों को इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। गजा शहर, जो शिमाली पट्टी में वाक़ है, सबसे बड़ा और अहम तरीन शहर इलाका है। इस्राएली काबीना ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हालात में किसी भी मुतबादिल तजवीज़ से ना तो हमास को शिकस्त दी जा सकती है और ना ही इस्राएली यकीमानियों को वापस लाया जा सकता है। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कौमी टीम ने ट्रिनिडाड में डेरे डाल लिए हैं। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशंस में हिस्सा लिया। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट सेशन में दिए गए मखसूस टारगेट्स को कामयाबी से मुकम्मल किया। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान का कहना है प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही, सीरीज़ के लिए भरपूर तैयारी की है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने के बाद टीम का मोराल बुलंद है। मोहम्मद रिजवान का मज़ीद कहना था कि फ़खर जमान की टीम में न होने से नुकसान हुआ, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों के पास कारकर्दगी दिखाने का मौका है। और भारत का खेल से खिलवाड़, एशिया हॉकी कप से पाकिस्तान को बाहर करके बांग्लादेश को शामिल कर लिया। एशिया हॉकी कप भारतीय रियासत बिहार के शहर राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शेड्यूल है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ख़त के ज़रिए AHF को मौजूदा जंगी माहौल में पाकिस्तान टीम को भारत भेजने पर सिक्योरिटी खदशा से आगाह किया था। PHF के ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालात, भारतीय मीडिया के वावेले और RSR की धमकियों की वजह से बग़ैर हुकूमत की इजाज़त के पाकिस्तान हॉकी टीम का भारत भेजना मुमकिन नहीं था। मौजूदा सूरत हाल में भारत में ही शेड्यूल जूनियर वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम की शिरकत मशकूक हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।